presentation concludes. These statements are not the guarantees of future performance and involve risks and uncertainties after the difficult to predict. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Raju Bista, Managing Director of Surya Roshni Limited. Thank you, and over to you, sir. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Please go ahead. Thank you. So good afternoon, namaskar. On behalf of Surya Roshni Limited, I extend a very warm welcome to everyone for joining us today. On this call, we are joined by Mr. Naresh Singhal, Executive Director, Steel Operations, Mr. Gaurav Jain, CEO, Steel Operations, Mr. Jitendra Agrawal, CEO, Lighting and Consumer Durable, our CFO and Company Secretary, Mr. B.B. Singhal, and SJA, our investor advisor. And I hope everyone had an opportunity to go through the financial result, which was published yesterday. Moving on to the overall financial performance highlights, the company performance in FY24 has been commendable considering few challenges we face in both our steel and lighting division verticals. Our strategic focus on efficiency and cost optimization allow us to make substantial progress. We have a strong conviction that the very little few challenges currently faced by both the business vertical were only temporary, and we are anticipating a period of consistent growth in both the business segment going forward. And the EBITDA for FY24 stood at 586 crore, demonstrating good operation performance. The little dip in our operating margin were primarily due to challenges in the steel pipe business, mostly on account of price fall, and which was offset with improved margins in our lighting and consumer durable segment. Our proactive measures in capacity utilization, working capital optimization, and cost rationalization has been vital in supporting our financial performance. These efforts reflect in our steady pace, which stood at 330 crore, closely aligned with the last year performance. We achieved a major milestone by becoming a zero debt company, having successfully reduced our debt by 400 crore in this FY24-25. Reduced. So our commitment to financial prudence alongside our operational strategies has helped maintaining a healthy cash surplus of about 65 crores. We have declared a final dividend of 2.5 rupees per share, demonstrating our ongoing commitment to delivering shareholders' value. This is in addition to the interim dividend of 2.5 rupees per share already, which was disbursed. Now coming to lighting consumer durable, despite facing substantial price erosion in consumer lighting business, our annual revenue recorded a growth of nearly about 2% and now stand at 1,572 crore in FY24. EBITDA growth for Q4 FY24 and FY24 was up by 5% and 23% to 45 crore and rupees 150 crore respectively, as compared to the same period last year. EBITDA margin for Q4 FY24 and full year 24 stood at 10.66% and 9.57% respectively, as against 9.84% and 7.92% in Q4 FY23 and full year 23. Significant growth in sales volume along with a favorable product mix towards higher margin product and cost saving
from backward integration contributed to a robust operating profit. Infrastructure and industrial projects have driven our professional lighting segment to high digit growth in Q4 FY24 and over 20% in FY24. The vertical of LED segment like LED batten and downlighter have also witnessed healthy growth in FY24. In the financial year 2024, the fan businesses experienced significant growth in mid-range range, while the appliances segment also witnesses robust growth of about 20%. With our strong foundation and strategic market expansion initiatives, along with ongoing investment in technology and product development, we are well positioned to capitalize on this opportunity, ensuring continued growth. Now, moving to the steel pipe and steel business. In the fourth quarter of FY24, the steel pipe segment achieved its higher ever quarterly volume of 2.36 lakh ton. It experienced a volume growth of 6% in FY24 and 4% in Q4 FY24, despite a temporary slowdown in the B2B business, mainly due to the general elections. Export also experienced a healthy volume growth of about more than 12% in FY24. Despite a notable decrease in steel prices during Q4 FY24, the overall sales revenue experienced only a minor decline. We have successfully navigated the challenges posed by declining steel prices and other factors that has impacted the industry at large. Our focus on value-added product, which made up 45% of our total sales, 45% of our total sales also played a crucial role in sustaining our revenue streams. Despite the industry headwinds, our revenue remained resilient, experienced only a minor decline and closing the quarter at 1,665 crore. This resilience is a testament to our diversified product mix and our strategic market positioning, which includes significant contribution from both the API pipe and our robust export operations. Even our galvanized pipe segment also witnesses a healthy domestic demand in the Q4 FY24. Export constitute about 18% shares of our total volume in FY24. Additionally, our focus on value-added product, which already I have said, which made up almost 45% of our total sales, played a crucial role in sustaining our revenue. The EBITDA per ton for Q4 FY24 was 5,877 rupees as compared to 6,156 rupees in Q3 FY24 and 9,868 rupees per ton in Q4 of FY23. For FY24, EBITDA per ton stood at 5,401 rupees as compared to 6,496 rupees in last fiscal year. This decrease can be largely attributed to the decreased sales of some mainly API spiral pipe business, and the other part was mainly in loss of inventory in the Q4 of FY24. We have a strong order book of about 800 crores as on 35 March of 2024, which includes the oil and gas sector and export business. And we are currently in the process of expanding our operational capacity in order to meet the expected increase in market demand. Our goal is to increase our monthly production capacity by almost 15,000 tons per month. And by the end of June 24, our 8-inch
pipe capacity additional will be operating at will commence operational at the Bahadurgarh plant. Roughly 50,000 ton per year would be the capacity, and a spiral plant with an annual capacity of about 60,000 ton is scheduled to be commissioned at our Gwalior location in the same year by the end of almost Q2 FY25. This plant will be mainly used for the upcoming water projects. We will have a net increased capacity of about 36,000 ton per annum after our new cold rolling pipe facility at Bahadurgarh become operational in Q3 of FY25. The steel market is showing a sign of improvement as the steel price has begun slightly rise, or you can say stable since mid of April. And this will revive demand across our product categories, and we are optimistic about continued growth in our steel pipe segment given the government highlighting emphasis on the infrastructure development. For FY25, we are projecting a total volume growth of about 15% in our steel pipe business. This growth will be supported by our strategic expansion and our ongoing commitment to delivering higher quality innovating products. And this was from my part. Now I will request our CFO, Mr. B.P. Singhal, to share his thoughts on the other financials parts. Thank you, respected MD sir, and a very good afternoon to all the participants on the call. For the quarter, the revenue was rupees 2,080 crore as compared to 2,151 crore. Q1 FY24 EBITDA and PAT stood at rupees 173 crore and rupees 104 crore as compared to rupees 254 crore and rupees 156 crore respectively for the same period last year. For FY24, the revenue was 7,809 crore as compared to 7,997 crore. EBITDA stood at rupees 586 crore as compared to rupees 620 crore in FY23, and PAT stood at rupees 329 crore as compared to rupees 336 crore. For the lighting and consumer durables, for this quarter, the revenue stood at rupees 418 crore as against 431 crore. EBITDA and PBT stood at rupees 45 crore and rupees 36 crore, registering a growth of 5% each. For the full year, the revenue stood at rupees 1,572 crore as against 1,545 crore, a growth of 2% year-on-year basis. EBITDA and PBT stood at rupees 150 crore and 120 crore, a growth of 23% and 32% respectively. The increase in operating performance in this segment can be attributed to the PLI scheme, backward integration, and the increased demand for value-added products. For the steel pipe and steel segment, during Q4 for FY24, the revenue was rupees 1,665 crore as compared to 1,721 crore. Similarly, EBITDA per metric ton stood at rupees 5,877 rupees as compared to 6,156 in Q3 financial year 24 and rupees 9,868 in Q4 of FY23. PBT stood at rupees 103 crore as against rupees 181 crore last year. For FY24, the revenue stood at rupees 6,242 crore as compared to 6,452 crore. Similarly, EBITDA per metric ton stood at rupees 5,401 compared to 6,496 year-on-year basis, while EBITDA and PBT stood at rupees 436 crore and rupees 325 crore respectively. Improved capacity utilization, working capital optimization, and cost relation enabled us to become a debt-free company as we repaid our total debt of 400 crore in financial year 24. As on 31st March 24, ROCE stood at
21.14% and ROE stood at 16.33%. As on 31st March 24, the net working capital days stood at 59 days, inventory days stood at 48 days, debtor days stood at 31 days, and creditor days stood at 21 days. With this, I conclude the presentation, and we can now open the floor for further questions and answers. Thank you. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handset while asking a question. We will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Jatin Damani from Swan Investments. Please go ahead. Good afternoon, sir, and thank you for the opportunity. So first of all, congrats on achieving the zero debt and increasing the payout. So in your initial remark, you indicated that the decline in the EBITDA per ton in a steel pipe is largely attributed to a lower volume of API sales. So can you help us understand what was the overall contribution of the API sales in Q4 vis-a-vis the last quarter, Q3? ठीक है और कुछ? Also, दूसरा question is basically broader on the industry. Now, when we compare our numbers with the one of our largest competitor or the largest player in the industry, so if you look on the raw material front, we are quite competitive as compared to what they are. But when we come to our employees and the other expenses, we are probably at the lower end in terms of the efficiencies. So what are the steps as a company we are taking to improve that efficiencies when we compare it to a larger player in the industry? Good. Thank you. आपने 2 क्वेश्चन है, बट मैं इसको थोड़ा एलाबोरेट करके जो है जवाब देना चाहूँगा, जिससे बाकी लोगों के मन में भी कई सारे ऐसे प्रश्न होंगे। पहली बात तो जो मैं ओवरऑल आउटकम बताया, एक तो जो आपने भी बताया कि हम पूरी तरह डेट फ्री है, वर्किंग कैपिटल हो चाहे टर्म लोन हो, हमारे पास जीरो डेट है, इनफैक्ट हम कैश सरप्लस है, और ये हमारा कमिटमेंट था 1 साल बाद का, 1 साल पहले हमने उसको पूरा किया। दूसरा, जहाँ तक EBITDA की बात है, क्योंकि लास्ट ईयर जो FY 22-23 के अंदर में Q4 वो सब्सटेंशियल उसके अंदर में जो है EBITDA पर टन था स्टील पाइप में, और मैंने उसके बाद पहले क्वार्टर में ही कहा था कि हमारा पहला टारगेट ये रहेगा कि जो अभी EBITDA आया है उसको हम मेंटेन करें। सो समहाउ मतलब अगेंस्ट 619 करोड़ के अगेंस्ट में 586 करोड़ मेंटेन करने में हम लोग मतलब सक्सेसफुल हुए हैं। और आपने जो प्रश्न पूछा कि कितना टन कम हुआ और क्या फ्लक्चुएशन क्या था एपीआई में, कितना रिड्यूस हुआ, देखिए ओवरऑल जो एपीआई जो स्पाइरल था जिसमें पर टन EBITDA जो है काफी 15,000 टन के आसपास आता है, उस सेगमेंट के अंदर में टोटल जो है 32% की डीग्रोथ रजिस्टर्ड हुई है। मेनली वो इसलिए था क्योंकि ये जनरल इलेक्शन का साल होने की वजह से लास्ट 5-6 महीने से ही किसी तरह के कोई पीएसयू की कोई टेंडर वगैरह अवार्ड नहीं हुए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि Q1 से ही मतलब इलेक्शन डिक्लेयर जैसे खत्म हो जाएंगे वो ऑर्डर हमारे को हाथ में आने लग जाएंगे, तो उसको हम मेंटेन करेंगे। दूसरा, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जैसे Q4 के अंदर में तब एक ट्रेंड था प्राइस इंक्रीज का, और जिसके अंदर में जो है हमें काफ़ी सब्सटेंशियल जो है मतलब 40-50 करोड़ के आसपास जो है अपने को प्राइस अप वो ट्रेंड में था, तो उसका एक इन्वेंट्री गेन मिल गया था। लेकिन इस बार आप देखेंगे करीब जो है हमको
हमारे जो प्रॉफिट के अंदर में जो स्टील के अंदर में डिक्रीज है करीब 3,000 रुपये पर टन का है, और वो करीब करीब जो है पूरे साल में 250 करोड़ रुपए के आसपास का उसका जो है रेवेन्यू में इम्पैक्ट है। और जिंक के अंदर में 70,000 रुपये पर टन का जिंक डाउन हुआ है, उसका कंट्रीब्यूशन करीब 60 करोड़ के आसपास है। और जो गवर्नमेंट सेल का जो मैंने आपको बताया उसका कंट्रीब्यूशन करीब 300 करोड़, यानी 610 करोड़ रुपया इन 3 वजह से हमारे रेवेन्यू में कम रही है। और जहां तक प्रॉफिट की बात है, HR कोयल का इम्पैक्ट करीब 45 करोड़ का है, और API पाइप जो नहीं गया, जो जिसमें डिग्रोथ मैंने आपको बताया, तो उसके कारण जो है करीब जो है 20-25 करोड़ का उसका इम्पैक्ट है। तो ऐसे करके 60-65 करोड़ का वो इम्पैक्ट इसके अंदर में आया हुआ है, और आगे चल के मुझे लगता है वो हम रिकवर सरपास करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 3 साल में FY 21-22 के अंदर में हमारा EBITDA परसेंटेज 5.8% था, फिर 22-23 में 7.74% हुआ, फिर 23-24 के अंदर में 7.5% है, यानी 450 करोड़ से 619 करोड़ और फिर 586 करोड़ का हमारा कंपनी एज ए होल का EBITDA रहा है। इवन स्टील डिवीजन के अंदर में देखेंगे, हमारा जो पर टन EBITDA 4,648 से बढ़ते बढ़ते जो है करीब 5500 रुपीस पर टन के आसपास हुआ है। और आपको ये जान के हैरानी होगी, 19-20 यानी 5 साल पहले हमारा पर टन EBITDA 3250 रुपये होता था, यानी पिछले 4 साल में हमारी CAGR डबल है ऑलमोस्ट। इसी तरह लाइटिंग डिवीजन के अंदर में जो पर टन EBITDA परसेंटेज 8% होता था, जो बढ़ के इस साल जो है 9.5% हुआ है। और मैं आपको एश्योर करना चाहूँगा कि आने वाले समय में और अच्छे रिजल्ट आपको दिखेंगे। और मेनली आपने एक चीज़ बताया कि जहाँ तक रॉ मटेरियल की बात है वो हम काफ़ी कॉम्पिटिटिव है एज कम्पेयर टू पीयर्स, बट उसका जो ऑपरेशन कॉस्ट हमारी ज़्यादा है वो हम मानते हैं, मेनली क्योंकि हमारी कैपेसिटी 80-85% लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं है। इसकी वजह से वो सारी जो कॉस्ट होती है वो ऑपरेशन के अंदर में जुड़ जाता है और एनुअली उसके अंदर में बढ़ोतरी होती रहती है। इसीलिए एक मेगा प्लान लेकर के हम आए हैं। अगले 2 साल के अंदर में हम 500 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, क्योंकि कंपनी कैश रिच है, कैश जनरेट हो रहा है, और जो है हमारे पास अभी या तो कैपेक्स करना है या शेयर होल्डर को रिवर्ट करना है, 2 ही ऑप्शन हमारे हाथ में है। तो बैंक का तो अभी कोई देने का है नहीं, तो इसीलिए अगले 2 साल के अंदर में 500 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, जिसमें हमारी अभी जो कैपेसिटी है वो 1.2 मिलियन से बढ़ करके 2 मिलियन की कैपेसिटी हमारी हो जाएगी। और जिसके अंदर में ऑलरेडी 100 करोड़ के ऑपरेशन अंडर प्रोग्रेस है हमारे कैपेक्स, जो इसी साल में Q2 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, और जिसमें 15,000 टन की हमारी कैपेसिटी इनहांस होगी और एनुअली करीब 1.8 लाख टन के आसपास कैपेसिटी बढ़ेगी। और फिर कुछ हमारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारे काफ़ी आगे स्टेज पे बढ़ चुके हैं, अर्ली स्टेज पे हैं, जिसमें हिंदुपुर और भुज के अंदर में करीब 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लार्ज डाया पाइप 24 इंच की LDP पाइप के अंदर में हमारी कैपेसिटी आएगी, उसकी भी एनुअली करीब 1.8 लाख टन के आसपास कैपेसिटी इनहांस होगी। और थर्ड मेजरली हमने बोर्ड से ऑलरेडी 50 करोड़ का जो है लैंड एक्विजिशन के लिए जो है अप्रूवल ऑलरेडी ले चुके हैं। महाराष्ट्र में एक नया इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहे हैं, और 200 से 225 करोड़ रुपए प्लांट और मशीनरी के अंदर में वहाँ पे खर्चा आएगा। ऐसे करके हमारी जो है 500 करोड़ की जो है कैपेक्स का प्लान है अगले 2 साल में, और हमारी कैपेसिटी बढ़ के 2 मिलियन हो जाएगी, और आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि हमारी ऑपरेशन कॉस्ट जो है आपको कम दिख जाएगी। धन्यवाद इतना डिटेल आंसर के लिए। मतलब अगर मैं आपके कैश फ्लोज देखता हूँ, तो अगर मैं अगले 2 साल का भी नंबर देखूँ तो करीब 800 से 1000 करोड़ का हमें कैश फ्लो आ रहा है, और उसके सामने हम 500 करोड़ का ही कैपेक्स कर रहे हैं। तो क्या ये मानना आवश्यक है कि आगे चलकर हमारा पे आउट रेशियो, जैसे आपने इंडिकेट किया कि कैपेक्स नहीं करेंगे तो शेयर होल्डर को रिलोड करेंगे, तो क्या इंडिकेशन है कि पे आउट रेशियो आगे जाके बढ़ सकता है?
बढ़ेगा, क्योंकि तीसरी जगह हम कहीं पैसा दे नहीं सकते। शेयर होल्डर की कंपनी है, या तो हम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे या शेयर होल्डर को उसका लाभ मिलेगा। और जितना मैं जानता हूं कि जैसे हमने इस साल भी नया एक बहुत एग्रेसिव टारगेट लिया है, वॉल्यूम के अंदर में 15% का ग्रोथ, और हमारी EBITDA करीब 690 से 700 करोड़ के आसपास होगी। 2 साल के अंदर में 1400 करोड़ होगा। ठीक है, कुछ ग्रोथ होगी, उसके अंदर में कुछ वर्किंग कैपिटल में इन्वॉल्वमेंट होगा, कुछ एडिशनल नया जो कैपेक्स होगा उसमें भी कुछ पार्ट वर्किंग कैपिटल में होगा, बट जो कुछ भी होगा वो सब शेयर होल्डर का होगा। राइट। और ये सर 690 से 700 करोड़ का जो EBITDA आपने बताया फॉर FY25 लाइटिंग बिजनेस को जोड़कर है, राइट? हाँ, लाइटिंग और स्टील डिवीजन, करीब लाइटिंग डिवीजन के अंदर में आपने देखा होगा 8% से मैंने कहा था हम 10% की तरफ बढ़ेंगे। Q4 के अंदर में 10.55% हमारा EBITDA परसेंटेज था, और अगले साल हम मान के चलते हैं फुल ईयर में 10.5% का EBITDA होगा, स्टार्टिंग Q1 फ्रॉम 9.5%। सो करीब 180 से 190 करोड़ के आसपास EBITDA एब्सोल्यूट टर्म में लाइटिंग का रहेगा, और करीब 500 करोड़ का EBITDA जो है 500-525 करोड़ के आसपास EBITDA स्टील डिवीजन का रहेगा। और मेरा ऐसा मानना है, हमारा प्लान भी यही है कि करीब 5400 से लेके 5500 रुपीज पर टन, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी एग्रेसिव है। करीब 17-18% के आसपास वॉल्यूम में ग्रोथ है, और रेवेन्यू में करीब 15% का ग्रोथ है। तो उस वजह से जो है 5500-5400 के आसपास EBITDA पर टन हम मेंटेन करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। मेरे पास और काफी एक आध और क्वेश्चन है, बट मैं वापस लाइन में आ जाता हूँ। थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all the participants in the conference, please limit your questions to 2 per participant. Should you have a follow-up question, we will request you to rejoin the queue. The next question is from the line of Shweta Dikshit from Systematic Group. Please go ahead. Ms. Shweta, Hello. you can go ahead. Yeah. Yes, thank you. So, 2 questions from my side. एक पहला क्वेश्चन ये था कि जो आपने डिक्लाइन बोला API स्पाइरल पाइप्स में, दिस इज समथिंग जो पिछले क्वार्टर भी था कि मतलब API सेगमेंट में वैसे बाकी प्रोडक्ट्स में तो ग्रोथ था, बट स्पाइरल पाइप्स में दिस वाज अ डिक्लाइन लास्ट क्वार्टर आल्सो। एंड सो जनरल इलेक्शन का इम्पैक्ट कैन अंडरस्टैंड अगर 4th क्वार्टर में आया हो, बट अभी आउटलुक क्या है? व्हाट कैन वी सी, how can we see this segment moving forward? This is the first question. और दूसरा है कि जो आपका एक्सपेंशन है 1.2 मिलियन टन से 2 मिलियन टन तक का, where is the focus going to be in terms of end user segment? आप कौन से मतलब वैल्यू एडिशन पे कितना फोकस है, या फिर इफ यू कैन गिव अ नंबर कि आपका आप कितना टारगेट कर रहे हैं कि 2-3 साल में आपका वैल्यू एडेड शेयर कितना रहेगा सेल्स में? जो द फर्स्ट वन आपने जैसे बताया कि API में जो डिग्रोथ है, क्योंकि जनरल इलेक्शन ईयर थ्रू आउट था, तो उसका इम्पैक्ट Q3 में भी थोड़ा था, Q4 के अंदर में भी था। लार्जली जनरली ऐसा होता है कि PUC के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो 5-5 साल के इन्वेस्टमेंट होते हैं, और जनरल इलेक्शन के टाइम पे हमेशा हमने ऐसा देखा है कि थोड़ा वो स्लो हो जाता है सिस्टम। तो वो जो है मतलब ऑलरेडी पाइपलाइन में है, और जैसा मैंने आपको बताया 800 करोड़ के ऑर्डर इन हैंड हमारे पास ऑलरेडी हैं, जो मेटेरियलाइज होने हैं मतलब इस आने वाले क्वार्टर के अंदर में। तो वो एक है, और हम ऐसा मानते हैं। और हमारे पास देखिए कैपेसिटी की भी एक कंस्टेंट है। पिछले 5 साल के अंदर में हमारा पूरा फोकस यही था कि किसी तरह हम डेट को जीरो करें, क्योंकि 5 साल पहले हम जब भी कॉन कॉल में बैठते थे, इन्वेस्टर का यही होता था कि आपका ये डेट का क्या करोगे, क्योंकि आज से 5 साल पहले 1200 करोड़ का डेट होता था, आज कैश सरप्लस है कंपनी। सो वो एक हमारे मतलब उसमें था, उसमें हमने अच्छा काम किया और डेट फ्री भी हो गया, और पिछले 5 साल में मार्केट ने भी काफी सपोर्ट किया। लेकिन इस 5 साल में हमने कोई ऐसा फोकस होकर के छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते रहे, बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया। तो 500 करोड़ का अगले 2 साल में हम जो कैपेक्स करेंगे, और फोकस हमारा इसके अंदर में जितने भी प्रोडक्ट कैटेगरी मैंने आपको गिनाया है, इसमें 70% जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे हमारा फोकस है, चाहे वो API हो, चाहे वो लार्ज डाया पाइप हो,
और 30% जैसे कोल्ड रोलिंग और कुछ जैसे बहादुरगढ़ के अंदर में या एक वाटर पाइप के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओवरऑल हमारा अभी जैसे पहले भी प्लान था, हम 50% जो है हमारा The management line got disconnected. Stay tuned till we connect the management line. The management line has been connected. Yes, sir. Go ahead. हेलो, रिकनेक्ट हो गया? Yes, sir. Sir. सो वही है, इमीडिएट हमारा टारगेट है 50% जो है हमारा रेवेन्यू जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से हमारा टारगेट है, और मुझे लगता है इमीडिएटली हम उसको अचीव करेंगे। और जो नया कैपेक्स 500 करोड़ का है उसमें करीब 70% जो है पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट यानी हाई मार्जिन प्रोडक्ट पे ही है। तो आगे चल के जो है 50% के रेशियो को भी हम सरपास करेंगे, वो हमारा फोकस एरिया है। और उसी में जो है प्रॉफिट भी करीब 75% के आसपास ओवरऑल कंपनी का कंट्रीब्यूट करता है। ओके, थैंक यू सर। एंड एक और चीज, फोर्थ लाइक कमिंग इस क्वार्टर में 1Q में व्हाट विल बी योर एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ एबिटा पर टन? सिंस स्टील प्राइस अभी वैसे इंक्रीज हुआ है 1-2 महीनों में, बट इज दिस सस्टेनेबल एट दिस लेवल? अपवर्ड ट्रेंड है और वॉल्यूम में भी ग्रोथ अच्छी है, और जो ट्रेंड हमको दिख रहा है। सो स्टील के अंदर में एबिटा पर टन 6000 से 6200 रुपीज पर टन के आसपास रहेगा, 6000 to 6200 रुपीज। और लाइटिंग डिवीजन के अंदर जैसे मैंने बताया कि 9.5% के आसपास रहेगा। सो लाइटिंग में, सो लाइटिंग डिवीजन के अंदर में एक पॉजिटिव साइन ये है, एबिटा परसेंटेज बढ़ रहा है। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 30% जो है प्राइस में इरोजन था, और हमने कुछ स्कीम को रीडिजाइन किया था, नेट प्राइस किया था, जिसके कारण रेवेन्यू में ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एबिटा परसेंटेज और ओवरऑल एबिटा एब्सोल्यूट टर्म्स में भी बड़ा है। 100 करोड़ से 122 करोड़, 150 करोड़, और अगले साल का हमारा टारगेट 190 करोड़ के आसपास का है। ये 190 करोड़ फॉर FY25? यस, फॉर लाइटिंग डिवीजन। लाइटिंग डिवीजन, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। Thank you. The next question is from the line of Dishant Rakesh Jain from Quasar Capital. Please go ahead. Yes, sir. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन एक ये था कि अभी इंडस्ट्री में सर जो दूसरे प्लेयर्स है वो दुबई में प्लांट बिठा रहे हैं, तो और अपन ऑलरेडी सऊदी और मिडल ईस्ट में अपन एक्सपोर्ट करते हैं, तो उधर सर एबिटा पर टन पे अपना एक थोड़ा रियलाइजेशन का इम्पैक्ट आ सकता है उधर से अगर सप्लाई बढ़ता है तो? सर मेरा ऐसा मानना है, कोई भी कंपनी हो या इंडिविजुअल अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलना चाहिए। मैं दूसरे के बैलेंस शीट देख करके मैं क्यों उस चीज को फॉलो करूं? और इसमें अपने अपने इफ एंड बट्स है। देखिए, कोई मतलब यूनिट बाहर लगाने से, आप देखिए मेरा 12
$1 पर टन में यहाँ से दुबई मटेरियल पहुंच जाता है, जो बेंगलोर से ऑलमोस्ट 1/3 प्राइस पे दुबई मटेरियल पहुंच जाता है मेरा, क्योंकि मैं पोर्ट में बैठा हूँ, और 3 दिन के अंदर में डिलीवरी हो जाती है। मतलब फॉरेन के अंदर में प्लांट लगाना फ्यूचर में क्या होगा मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन इमीडिएट हमारा ये मानना है कि बाहर प्लांट लगाने में जो झंझट है और जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और हमने ऐसा देखा कि हम जब पोर्ट के अंदर में बैठे हैं बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता पोर्ट के किस शोर में हम बैठे हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो है मतलब फेवरेबल डेस्टिनेशन होना चाहिए। इसलिए हमने भुज के अंदर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, फर्दर भी हम उसमें और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हम यूरोप में बैठे हैं कि दुबई में बैठे हैं, और हमारी कैपेक्स वगैरह हम पोर्ट बेस्ड प्लांट में ही बढ़ा रहे हैं। बॉम्बे में भी होगा, वो पोर्ट की फैसिलिटी होगी, तो बहुत ज़्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात क्या है कि जैसे फॉरेन के अंदर में मेनली एक्सपोर्ट के अंदर में या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के अंदर में आपको ब्रांड की जरूरत बहुत सख्त होती है, और हमने पिछले 50 साल कंपनी को हो गया ब्रांड के ऊपर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो क्वालिटी के ऊपर हो, चाहे सर्विस के ऊपर हो, चाहे रिलेशनशिप के ऊपर में हो। क्योंकि इन जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट या एक्सपोर्ट के अंदर में सिर्फ प्राइस पॉइंट पे मटेरियल नहीं बिकता, तो उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ है, और सबकी अपनी अपनी सोच रहती है। और हमारा अभी तक का प्लान ये है कि इंडिया के अंदर में जो एटमॉस्फेयर है, जो पोटेंशियल है, जो आगे की फ्यूचर की ग्रोथ दिखती है, उस वजह से हमारे लिए डेस्टिनेशन ज़्यादा फेवरेबल है। यहाँ से हम आज देखिए सूर्य रोशनी एक ऐसी कंपनी है जो HR कोल जापान से लेते हैं और वापस पाइप बना करके जापान को भेजते हैं हम लोग। सो जापान से लेकर के अमेरिका, कनाडा, अपवर्ड में, और जो है न्यूजीलैंड और आपका ऑस्ट्रेलिया तक हम मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 40-50 देशों के अंदर में। ओके सर। एंड सर मेरा एक सेकंड क्वेश्चन फंडामेंटली था कि इंडस्ट्री में लेट्स से जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो अगर फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके अगर ये पाइप सेगमेंट में आए तो वो सेट बनेगा इंडस्ट्री में कि उसमें कुछ इम्पैक्ट आएगा? क्या है कि हमारा तो देखिए हमारी स्ट्रेंथ जो है पाइप है, और मैं HR कोयल बना करके आज टाटा और JSW से तो कम्पीट नहीं कर सकता, और बाकी जो है जो लोअर क्वालिटी का स्टील होता है उसके अंदर में हम डील नहीं करते, इसीलिए हमको प्रीमियम मिलता है, इसीलिए हमको जो है हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, इसीलिए हम एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, इसीलिए हम API के अंदर में नंबर 1 है। तो उसके अंदर में क्या है, आपको हैवी 15,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर आप हाई क्वालिटी के HR कोयल बनाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है। तो उस लेवल पे अभी हमने सोचा नहीं है। और पाइप के अंदर में अच्छा अवेलेबिलिटी की कोई इशू ही नहीं है। आज हिंदुस्तान में चाहे साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, सब जगह अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल है। और आज टाटा हो, चाहे JSW हो, चाहे ArcelorMittal हो, सब अपनी कैपेसिटी को ऑलमोस्ट डबल कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि हम एक्सपोर्ट बेस हैं, पोर्ट में बैठे हैं, तो इंपोर्ट भी हमारे पास ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। कहीं भी 1,000 रुपये टन से ज़्यादा का वेरिएशन रहता है तो हम इंपोर्ट भी एक्सप्लोर कर रहते हैं। तो अभी तक तो हमने पाइप का ही सोचा है, HR कोयल या उस मतलब रॉ मटेरियल के बारे में अभी तक हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा पीछे था कि लेट्स से मैं पूछ रहा था कि जो स्टील कंपनी से लेट्स से टाटा, JSW, ArcelorMittal, अगर वही कंपनी पाइप सेगमेंट में एंटर करे तो उनके लिए सप्लाई चेन एक्सटेंशन होगा, राइट? उनको अगर फॉरवर्ड इंटीग्रेट करने का है, वो इधर ये पाइप बिजनेस में आए तो वो इंडस्ट्री के लिए थ्रेट बन सकता है। टाटा नहीं, टाटा ऑलरेडी है पाइप सेगमेंट के अंदर में वो, बट बहुत ज़्यादा उसमें फोकस एरिया उनका नहीं है जितना मुझे पता है। और कुछ लोग उसमें से जो HR कोयल बनाने वाले, मैं नाम तो नहीं लूँगा, क्विक भी कर रहे हैं पाइप से, और जो है शायद JSW का पाइप बनाने में उनका इंटरेस्ट भी है, वो एक्सप्लोर भी कर रहे हैं शायद भूषण को टेक ओवर करने के बाद। और जो दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर में जिसको बेबी कोयल बनते हैं या थोड़ा सा लो ग्रेड क्वालिटी का स्टील होता है, वो उसमें हम आज भी डील नहीं करते और फ्यूचर में भी नहीं करेंगे। ओके सर, एक ये क्वेश्चन था।
Dishant? Okay, I'll join the team. Yeah. Yeah, thank you. sir. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all the participants in the conference, please limit your questions to 2 per participant. Should you have a follow-up question, we will request you to rejoin the queue. The next question is from the line of Vikas Singh from Phillip Capital. Please go ahead. हेलो सर, अवसर के लिए धन्यवाद। सर, मुझे जानना था जो हम 1.2 को 2,20,00,000 की कैपेसिटी कर रहे हैं हायर वैल्यू एडिशन पे, तो जो प्रोडक्ट मिक्स हम देख रहे हैं उसमें क्या एबिटा पर टन रेंज चलता है, अगर आप वो बता सके हमें तो। 1 मिनट। हाँ, तो मैं आपको थोड़ा प्रोडक्ट मिक्स का रेशियो आपको बताता हूँ। स्टील डिवीजन के अंदर में हमारा ट्रेड का टोटल ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू मटेरियल बेचते हैं उसका कंट्रीब्यूशन करीब 54% के आसपास है। एक्चुअल यूजर है करीब 5% के आसपास, और एपीआई जो हम स्पाइरल हो या ईआरडब्ल्यू हो वो बेचते हैं पीएससी को, वो करीब जो है उसका 12% के आसपास है, और कोल्ड रोलिंग का कंट्रीब्यूशन 12% के आसपास है, और एक्सपोर्ट का जो है करीब 17% के आसपास कंट्रीब्यूशन है। ऐसा करके 100% ये है। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि 45% कंट्रीब्यूशन हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से है, और वही हमारा जो है फोकस एरिया है। तो सर जब ये 60% हो जाएगा 2 साल बाद, जैसे बताया आपने, जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज आपने पूछा पर्टन ईबिटा क्या रहता है, जैसे गैल्वेनाइज पाइप के अंदर में 6500 रुपीज पर टन के आसपास रहता है। एपीआई के अंदर में 11,000 से 12,000 रुपीज पर टन ईबिटा रहता है। वो डिपेंड करता है ऑर्डर टू ऑर्डर, ये करीब 15,000 भी हो जाता है, कभी 10,000 भी हो जाता है। ब्लैक पाइप के अंदर में कंट्रीब्यूशन करीब 4500 रुपीज पर टन के आसपास रहता है। सेक्शन में सबसे कम रहता है करीब 2,000 रुपये पर टन, और कोल्ड रोलिंग भी करीब 1500 रुपये ही है, जिसलिए थोड़ा कोल्ड रोलिंग के अंदर में हम 40-50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें थोड़ा इसमें करीब 1,500 रुपये पर टन ईबिटा के आसपास इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ऐसे करके 5400-5500 रुपीज पर टन ईबिटा जॉइंटली हमारा आता है। जी सर, एक्चुअली मेरा प्रश्न थोड़ा डिफरेंट था। मैं ये बोल रहा था जो 5400 है, जब आपकी नई कैपेसिटी आ जाएगी जिसमें वैल्यू एडिशन ज्यादा है, तो वो लाइक टू लाइक बेसिस में वो कैसा दिखता, मतलब वो वापस 6.5 ब्लेंड पे पहुंच जाएगा या 7,000, वो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हम मिक्स प्लान कर रहे हैं? नया जो हम कैपेक्स में प्लान कर रहे हैं उसका जो है कंट्रीब्यूशन 7,500 से 8,000 रुपये पर टन आसपास का रहेगा। सो हमारा जो टारगेट है उसके बाद जो है एवरेज हमारा 6,500 से 7,000 रुपये पर टन के आसपास रहेगा कंपनी एज ए होल इन स्टील सेगमेंट। समझिए सर। सर मेरा दूसरा प्रश्न था लाइटिंग डिवीजन में। जी, अभी की जो हमारी कैपेसिटीज है उसके हिसाब से हमारा ये पीक रेवेन्यू क्या लेवल का हो सकता है लाइटिंग डिवीजन में? लाइटिंग डिवीजन के अंदर में देखिए ग्रोथ, सब्सटेंशियल ग्रोथ की उम्मीद है। कारण ये है कि पिछले 4-5 साल के अंदर में मतलब बहुत अनस्टेबल सा ये बिजनेस रहा। जब से एलईडी आया तब से ये बिजनेस में मैच्योरिटी आज तक नहीं दिखी, और एज ए रिजल्ट जो है आए दिन यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, साइज चेंज हो जाती है, लेंथ चेंज हो जाती है, उसका CRI वैल्यू चेंज हो जाती है, उसकी कलर चेंज हो जाती है। सो बड़ा फैंसी टाइप जो है ये बिजनेस हो गया है, और मेनली इसका कारण ये है क्योंकि लोग जो है प्लांट पे और मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, और कहीं से इंपोर्ट करके बेच रहे हैं, कहीं लोकल वेंडर डेवलप करके बना रहे हैं। इसके कारण जो है मतलब कुछ मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है, और आज भी जो है 50% से ज्यादा मार्केट जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है। तो धीरे धीरे उसके अंदर में जो है चेंज आ रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज में प्राइस का वेरिएशन करीब 50% से लेके 100% के आसपास था। अब वो हमारा भी प्राइस इरोजन इतना हो गया है,
अब वो वेरिएशन रहा नहीं, वो वेरिएशन जो है 15, 20, 25% तक का वेरिएशन है और उसके अंदर में क्वालिटी के इश्यूज ज्यादा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमने लास्ट ईयर भी अगर मैं प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वॉल्यूम टू वॉल्यूम अगर कंपेयर करूं 20% से ज्यादा की ग्रोथ किया था। और जैसे मैंने बताया प्राइस इरोजन के साथ हमने देखा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है हमारा स्कीम के अंदर में करीब 25-30% के आसपास स्कीम बन गया था, जो फ्री के स्कीम होते हैं या अन्य कुछ होती है, तो हमने उसको नेट प्राइस करके एक ही साथ में उसको बराबर कर दिया। सो ऐसा मेरा मानना है कि 20% रेगुलर ग्रोथ के अंदर में कोई 1% भी दिक्कत लाइटिंग डिवीजन में नहीं आएगी। और दूसरा अच्छी बात है कि लाइटिंग के अंदर में हमारा जो क्वालिटी रिप्लेसमेंट कॉस्ट था वो कभी 12% होता था, घटते घटते 3% पे आ गया है। सो क्वालिटी हमारी A1 है और ग्रोथ 20% के आसपास रहेगी। और इसमें कुछ न्यू सेगमेंट के अंदर में भी हम एंट्री कर रहे हैं, लेकिन इस बोर्ड मीटिंग के अंदर में हम उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। होपफुली हम Q2 के आसपास जो है बोर्ड के अंदर में प्रेजेंट करके कुछ नए प्रोडक्ट कैटेगरी भी हम लाइटिंग के साथ जोड़ रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे 2,200,000 के आसपास जो हमारे रिटेल आउटलेट हैं। और बहुत सारे कॉमन प्रोडक्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में डील होती है, तो कुछ और प्रोडक्ट कैटेगरी भी हम इसमें काम कर रहे हैं। समझ गया सर। भविष्य के लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बता। Thank you. The next question is from the line of Amay from Banyan Capital. Please go ahead. Yeah, thanks for the opportunity. सर एक डेटा कीपिंग क्वेश्चन था। अगर मैं ये Q4 का प्रेजेंटेशन देखूं, सो EBITDA इज 128 करोड़ एंड EBITDA पर टन इज 577 करोड़। तो सर अगर मैं रिवर्स कैलकुलेट करूं तो वॉल्यूम 2,17,000 टन आता सर, एंड आपने आई थिंक 2,36,000 रिपोर्ट किया। तो हेलो, वो पर्सन EBITDA नेट ऑफ रिजेक्शन निकाला है, इसलिए वो आप उसमें जोड़ रहे होंगे ग्रैंड टोटल से। ओके ओके एंड सर जस्ट वन मोर क्वेश्चन सर, व्हाट्स द हेलो सही है, वो नेट क्वांटिटी सही है। सर कैन यू रिपीट प्लीज? ऐसा है कि आप FY 22-23 में भी देखेंगे तो सारा नेट पे ही हमारी कैलकुलेशन होती है पर्टन EBITDA। ओके, गॉट इट। And sir, just one more question. Sir, what's the update on the demerger of consumer durable business? डीमर्जर होगा तो दोनों बिजनेस का होगा, लेकिन अभी उसमें जो है कोई फैसला नहीं हुआ है। और ये इतना बड़ा डिसीजन है, जब भी होगा तो हम ऑटोमेटिकली आपको सबसे पहले बताएंगे, और जब भी होगा वो आपसे पहले ही होगा। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all the participants in the conference, please limit your questions to one per participant. Should you have a follow-up question, we will request you to rejoin the queue. Thank you. The next question is from the line of Nitesh Dutt from Burman Capital. Please go ahead. Hi, thank you sir opportunity के लिए। मेरा क्वेश्चन था कि सर इन द स्टील पाइप डिवीजन हर कोई कंपनी कैपेसिटी काफी अग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है, चाहे APL, अपोलो, JTL, अदर कंपनीज, यू एज वेल। सो क्या इसमें कोई ओवर कैपेसिटी का सिनारियो हो सकता है इन द कमिंग 3-4 इयर्स, एंड उससे कोई प्राइस पे इम्पैक्ट, प्राइस वॉर काइंड ऑफ सिनारियो होगा? एंड इसी से रिलेटेड सर जो सेकेंडरी स्टील सेगमेंट है, क्या आपको लगता है कि वो सेगमेंट उसका अपना एक मार्केट है वो बना रहेगा, या फिर आपके जैसे जो प्राइमरी स्टील HR कोयल बेस्ड प्लेयर हैं क्या उनसे शेयर गेन कर सकते हैं? तो गुड क्वेश्चन। एक तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कैपेसिटी एनहांस हो रहा है या हम लोग कर रहे हैं या बाकी पीयर्स में भी हो रहा है, मुझे लगता है उसके कारण जो है ओवर कैपेसिटी वाला सिचुएशन एटलीस्ट हिंदुस्तान में तो मुझे नहीं दिखता, क्योंकि 144 करोड़ की हमारी आबादी है और 10 लाख करोड़ का कैपेक्स हर साल भारत सरकार खुद कर रही है।
तो मेरा ऐसा मानना है कि काफी अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल एटलीस्ट फॉर अनदर 20-25 ईयर्स तो है हिंदुस्तान के लिए। सो दैट इज नंबर 1। क्योंकि हमारी डेमोग्राफी और आज देखिए हम बॉम्बे दिल्ली में रह करके हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर क्राउडेड दिखता होगा, बट हम शहरों से बाहर जाएंगे तो हिंदुस्तान में अभी भी मतलब काफी वो पोटेंशियल है। और इन सब के अंदर में ज्यादा मैं देख रहा हूँ जो स्टील और आपका सीमेंट यही सब चीजों के अंदर में ज्यादा इनकी डिमांड है। सो ये है। और दूसरी बात जो है मतलब हमने ये भी इंश्योर किया है कि ऐसा कोई सिचुएशन, क्योंकि क्या है जो आपने बात बोली उसमें एक बात बहुत पते की ये है कि ये बहुत इसके अंदर में आपने देखा होगा पिछले 100 साल से पाइप बनाने की टेक्नोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। सो टेक्नोलॉजी में फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं होते जैसे लाइटिंग डिवीजन में होता है। दूसरा, इसमें थोड़ा कैपेक्स करके रेवेन्यू या टर्नओवर जो आप कह लीजिए वो काफी हाई होता है। सो बहुत सारे लोगों का ये भी लगता है ये धंधा बहुत अच्छा है, थोड़े पैसे में ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनी बन जाती है। ये एक लोगों के माइंड में भी रहता है। और इजी है, HR कोल खरीदो, स्लिट करो और रोल करो, ऊपर से वेल्डिंग करो, पैकिंग करो और डिस्पैच कर दो। तो ये है। तो हमने इसीलिए हमने अपने आप को थोड़ा सा अलग रखने का प्रयास किया है हमेशा पिछले 10 साल के अंदर में। और हम इसीलिए ज्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर में हम फोकस कर रहे हैं, चाहे एक्सपोर्ट हो, जहाँ ज्यादा डिफिकल्ट है पाइप बनाने में, जहाँ थोड़ी भी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, जहाँ थोड़ा कैपेक्स ज्यादा लगता है, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे PSC हो, चाहे ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, उसके अंदर में हमने फोकस किया। और गैल्वेनाइज्ड पाइप के अंदर में भी अच्छा हमको प्रीमियम मिलता है क्योंकि हमारी ब्रांड वैल्यू वहाँ पे बिकता है। सो वो है। और एक बात और आपने कही थी लास्टली, सेकेंडरी जो सेल्स है, जो आपका सेकेंडरी स्टील का जो सेगमेंट है, ये फ्लक्चुएट करता है। ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर जितने भी है, जब प्राइस जो है HR कोल प्राइमरी स्टील और सेकेंडरी स्टील के अंदर में गैप जो है 5000 से नीचे आ जाता है, ये सब दुकानें बंद हो जाती है। और जब भी 4-6 महीने बाद जो ये गैप बढ़ के 8000 से ऊपर आता है, फिर दुकानें खुल जाती है। सो ये एक है मतलब इनकी वजह से दिक्कत। बट इसके अंदर में ये जो मार्केट को कैटर करते हैं, ये एक लिमिटेड मार्केट है जिसके अंदर में थोड़ा हल्का पाइप हो, हल्का स्टील हो, जिसको मेनली आप सेक्शन स्क्वायर के अंदर में ये सप्लाई करते हैं, तो भी वहाँ चल जाता है क्योंकि उनको उतनी स्ट्रेंथ का स्टील की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो एक है। और ग्रेजुअली हमने उसमें भी देखा कि मार्केट अब ऑर्गेनाइज की तरफ जो है स्टील के अंदर में भी काफी सब्सटेंशियली जो है मार्केट शिफ्ट हुआ है। और हमारे से मैं तो कहूँगा ज्यादा हमारे पीयर्स कुछ साथी उन्होंने इसमें ज्यादा अच्छा काम किया और वो शिफ्ट दिखता भी है। और जिस सेगमेंट में आज हम डील कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 12,000 रुपये पर टन EBITDA API के अंदर में है, गैल्वेनाइजिंग में 6,500-7 हजार रुपये है। जिस सेगमेंट में जहाँ कंपटीशन है उसमें 2,000 रुपये पर टन EBITDA भी है। तो हमारा फोकस इसीलिए जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे और इंजीनियरिंग साइड पे ज्यादा है। Got it. Thank you, sir, for the response. Thank you. The next question is from the line of Kaushik Dani from Abans Group. Please go ahead. हेलो, गुड आफ्टरनून सर। मुझे ये जानना था कि आपने जो कहा कि कैपेक्स आप 500 करोड़ की करोगे अगले 2 साल के लिए, राइट? तो ये जो पर्टिकुलर कैपेक्स है मीन्स सो इससे अपनी कैपेसिटी फिलहाल कितनी 1.2 मिलियन है, वो कितनी हो जाएगी? 2 मिलियन हो जाएगी, 20 लाख टन हो जाएगा। ओके, तो अभी फिलहाल 1.29 है या वो FY25 में कितनी हो जाएगी? FY25 के अंदर में ऐसा है कि टोटल जो हम करीब है हमारी 15,000 टन की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो साल में 1.8 लाख टन हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये फुल अचीव नहीं होगा क्योंकि आप Q2 Q3 में जाकर के जो है ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। सो इसका जो है करीब 40% के आसपास जो है हमारे को इसी साल में बेनिफिट मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ओके, और FY26 तक 2 मिलियन टन की हम करने की सोच रहे हैं, बराबर? हाँ, और आपने कहा कि 15 से 18% सॉर्ट ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फॉर FY25 एंड सिमिलर फॉर FY26। जी।
और पहले मैंने ऐसे सुना था कि आपने कहा 5,400 से 5,500 का एबिटा पर टन आप इस साल के लिए सोच रहे हो, और आपने 6,500 से 7,000 कहा था, वो क्या 26 के लिए है या थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए है? नहीं, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि उसमें दो चीजें हमको ये देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कैपेक्स लगना पड़ेगा, फिर कमीशन भी होनी पड़ेगी, फिर मटेरियल माल बिकना भी पड़ेगा, तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म आप मान के चलिए 3 साल का हमारा टारगेट है वो। ठीक है। और ये 500 करोड़ से स्टील के लिए है ना, लाइटिंग के लिए कुछ नहीं है, राइट? लाइटिंग का हमारा साल में जो है 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारा फिक्स है। और हमने PLI भी करीब 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था, और पहला इंस्टॉलमेंट हमको रिपेमेंट भी आ गया सरकार से करीब 2 करोड़ के आसपास। सो वो है। और जो ये मैं 25 करोड़ तब बोल रहा हूँ, कुछ नए प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर में हम लोग एंटर कर रहे हैं, तो वो सब मिला के अगले 30 साल के अंदर में करीब 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाइटिंग डिवीजन में भी होगा। गॉट इट। एंड फाइनली आपने जो 500 करोड़ का बोला, उसका एसेट टर्नओवर भी सेम ही रहेगा जो करंटली है? हाँ, सेम रहेगा वो। Thank you. The next question is from the line of Miraj from Arihant Capital. Please go ahead. धन्यवाद सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मोस्ट ऑफ माय क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड। खाली एक दो क्लैरिफिकेशन सर मुझे चाहिए था। फर्स्टली, आपने जो बताया कि 50 करोड़ का लैंड एक्विजिशन किया है, इज इट इन महाराष्ट्र? कहाँ पे किया है, मुझे फर्स्टली ये जानना है। एंड दूसरा सर, आपने जो अनाउंस आपने इन स्टार्टिंग एक दो क्वेश्चन में आपने बताया था कि 32% डीग्रोथ देखा है ड्यू टू इलेक्शन इम्पैक्ट। तो जस्ट वांट टू रिकन्फर्म, जो मैंने बराबर सुना था, ये API ग्रेड पाइप्स के लिए ही हुआ है 32% डीग्रोथ? API में भी दो कैटेगरी है, एक तो ERW सेगमेंट है और दूसरा स्पाइरल है। मेनली स्पाइरल में लार्ज डाया पाइप डील होती है, वो 18 इंच से ऊपर की पाइप होती है, साइज होती है, तो उसके अंदर में जो है डीग्रोथ है। और बाकी जो है मतलब ERW करीब करीब हमारा API के अंदर में फ्लैट है। और दूसरा क्या पूछा था आपने? दूसरा सर, जो आपने 50 करोड़, हाँ वो अंडर प्रोसेस है, वो महाराष्ट्र में ही है। और जगह तो हाँ, मतलब मुझे लगता है अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे जगह, लेकिन महाराष्ट्र में ही है, मतलब एयरपोर्ट से घंटा 1.5 घंटे की दूरी पे है। नो वरीज सर, चलेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। ठीक है जी, Thank you.